Dear students, today we are going to start Maths Part 2, Chapter number 1, Complex Numbers. Exercise 1.1. Now see question number 20. If x plus iy equal to square root of a plus ib upon c plus id, then prove that x square plus y square whole square equals upon c square plus d square. So dear student, first we have to check what is the relation between question and to prove. We see that x plus iy, where I is a complex number, I means under root minus 1. So x plus iy whole thing is a complex number. And square root of a plus ib and c plus id. So each term, or you can say x plus iy, a plus ib and c plus id are all complex number. ये सभी कैसे हैं? सभी complex number के form में हैं. Plus y square, so it is not a complex number, it is real part. Equal to numerator a square plus b square is also real, and denominator c square plus d square is also real. Means square of a real number is the ratio of the two real numbers. तो यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू दिस मच. तो ये प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए उसको हम देखते हैं. फॉर द प्रूफ, since x plus iy equal to square root of a plus ib upon c plus id, इसको हम assume कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट. इफ वी replace I equal to minus I, so this given expression or given equation will be, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दें कि put I equal to minus I means replacing I by minus I, so what we get here? तो x minus iy equals square root of a minus ib upon c minus id. It is इक्वेशन नंबर 2. और दूसरी ये चीज़ ध्यान, हाँ यहाँ पर हमारा देखो कॉन्जुगेट, एग्जैक्टली कॉन्जुगेट यहाँ पर होता है. जैसे अगर हम एक नंबर का कॉन्जुगेट लिए तो ये साइड का भी हम कॉन्जुगेट हो जाता है, ये साइड का भी कॉन्जुगेट फॉर्म ही सेट हो रहा है इसका, तो ही हमेशा लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते. तो खैर छोड़ो उस बात को, उसका कोई मतलब नहीं. x plus iy equal to square root of a plus ib upon c plus id, equation number 1. Therefore x minus iy equal to square root of a minus ib upon c minus id. It is equation number 2. क्या? Replacing I by minus I on both sides. सिर्फ इतना ही समझना है. देखो यहाँ भी minus I and minus I. तो अब हमारे पास ये 2 इक्वेशंस मिल गए, किसमें? एक्स वाई एंड ए बी सी डी के फॉर्म में. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2 टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब इनके साइड को बिना चेंज किए हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं. जैसे तो देयरफॉर एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, देखो एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a plus ib upon c plus id multiplied by square root of a minus ib upon c minus id from equation 1 and 2. यहाँ पर लिख लेना है. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और किस फॉर्म में आता है. देखो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. So easily you can write here a square minus b square. So square of I into square of y, that is I square into y square equals square root of a plus ib into a minus ib. This is equal to square of a, that is a square minus I square into b square entire upon c square minus I square into d square. So using same formula for left hand side and here in the numerator and denominator. So which formula is applicable here? A plus b into a minus b equals a square minus b square. So easily you can apply this formula in this term. But we know that value of I square is minus 1.
Here also I square present, I square is minus 1 and I square is minus 1. So if we put the value of I square which is equal to minus 1, so what we get? देखो x square as it is, I square is minus 1, सिर्फ I square का वैल्यू क्या होता है minus 1, already one minus here present, so minus into minus 1 becomes plus y square. So left hand side becomes x square plus y square equals square root of a square माइनस इंटू माइनस 1, देखो एक माइनस यहाँ पहले से है और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर डिनोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बिकॉज आई स्क्वायर इज माइनस 1. So we get x square plus y square equals square root of a square plus b square upon c square plus d square. Therefore, x square plus y square whole square इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर लिख लेना है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बी एस दैट इज बोथ साइड्स. तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. क्योंकि हमें जो पार्ट प्रूफ करना था यहाँ पर वो हमें लाना था ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. तो इजिली यू कैन प्रूव इट. So therefore it becomes a square plus b square upon c square plus d square and question finished, hence proved. तो ये हमें जो प्रूफ करना था पार्ट आ गया. तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर न्यू listener on my channel, that is Rajendra's teaching, so please subscribe the channel. If a plus ib equal to 1 plus I upon 1 minus I, then prove that a square plus b square equal to 1. अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिया, ओनली a plus ib लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या लिखा 1 plus I अपॉन 1 माइनस आई इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसके प्रूफ स्टार्ट कर देते हैं. फॉर द प्रूफ, since a plus ib equal to 1 plus I upon 1 minus I, this is given. From here it is given term. So a plus ib 1 plus I upon 1 minus, अगर हम डायरेक्टली यहाँ से सोल्यूशन लेना चाहें तो हमें यहाँ से सोल्यूशन नहीं मिलेगा और इसका हम यहाँ पर कॉन्जुगेट भी नहीं करेंगे. तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सोल्यूशन को देखो. Therefore a plus ib equal to 1 plus I upon 1 minus I into 1 plus I upon 1 plus I, multiplying and dividing by conjugate of the denominator. So what is conjugate of the denominator? Conjugate of 1 minus I is 1 plus I, dividing by 1 plus I in the right hand side only. So we get a plus ib equals 1 plus I upon 1 minus I into 1 plus I upon 1 plus I. Now simply 1 plus I into 1 plus I, that is 1 plus I whole square. So 1 plus I whole square is what? 1 plus 2I plus I square. In the denominator, we see that it is in the form of a minus b plus b. So square of 1, that is 1, and square of I is I square. We know that I square is minus 1, so substituting I square minus 1 in numerator and denominator. So it is equal to 1 plus 2I, I square is minus 1 here, upon 1 minus minus 1. So we see that in the numerator 1 and minus 1 get cancelled, only 2I remaining. So 2I upon here 1 plus 1 becomes 2. So 2I upon 2, that is 2 get cancelled, equal to I. So we get a plus ib equal to I. अब इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नोट कर लेते हैं कि a plus ib equal to I. Now comparing on both sides real and imaginary parts, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि RE means real and IM means imaginary in complex number chapter, the symbols. So if we compare the real and imaginary parts on both sides, we get A is real, this side only imaginary, means real part is 0. So this I can be written as 0 plus I. So therefore A equal to 0 and IB equal to I, that is B equal to 1. So A equal to 0 and B equals to 1.
अब इसके बाद हमें ये मिल गया कि वैल्यू ऑफ ए इज 0 एंड बी इक्वल टू 1. तो इफ वी स्क्वायर एंड ऐड these two terms, means squaring and adding these two, so what we get? देखो, squaring a square equal to square of 0, so this will be a square equal to 0. So a square plus b square here equal to 0 square plus 1 square, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करके हमने क्या लिखा, a square plus b square equal to 0 square plus 1 square, राइट हैंड साइड के स्क्वायर्स. So squaring and adding these two terms, we get a square plus b square equal to square of 0 plus square of 1. And a square plus b square as it is, 0 square is 0 and square of 1 is 1, that is 0 plus 1 becomes 1. So therefore a square plus b square equal to 1, hence proved. तो ये क्वेश्चन अपने को यहाँ प्रूफ करना था और easily you have completed this question also. So these questions are important for competitive exams as well as board exams. So for the competitive exams, you should learn the trick of the question, how will you simplify in short time. तो शॉर्ट टाइम इसको सॉल्व करने के लिए हमें जस्ट इसका इमेजिनेशन करना है कि व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ. तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू हमें याद रखना है कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1. आई स्क्वायर की वैल्यू को -1 ध्यान में रखते हुए न्यूमरेटर में सिर्फ 2i लिखना है. क्या लिखना है, 2i. मीन्स हमें 1 प्लस आई होल स्क्वायर क्या मिलता है, ओनली 2i. 1 प्लस आई होल स्क्वायर इज 2i, ये याद रखना पड़ेगा. और अगर इसी प्लेस पर 1 माइनस आई होल स्क्वायर हो जाएगा तो -2i. इन केस अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया या इसी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर दिए तो हमें क्या मिलेगा, -2i. वाइल फाइनल आंसर विल बी सेम. तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है, 2i/2, दिस इज i ओनली. और जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ऑप्शन क्या मिलेगा, 1. स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो ऑप्शन में क्या आ जाता है, 1, बिकॉज आई स्क्वायर. तो ये पहले क्या करना है, कंपेयर करके फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया और मिल गया 1. तो और यहाँ पर वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर -1 रखना नहीं भूलना है दोनों प्लेस पर. तो ये सब चीज़ें अगर याद रखते हो तो हमें शॉर्टकट में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इजिली और शॉर्ट टाइम में विद इन फ्यू सेकंड्स मिल जाएगा. और ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 20th सॉल्व किया, वो क्वेश्चन भी इजिली यू कैन सॉल्व एंड यू कैन फाइंड योर ऑप्शन फास्ट. Now see question number next. For the next question, number 22, show that root of 7 plus I root 3 upon root of 7 minus I root 3 plus root of 7 minus I root 3 upon root of 7 plus I root 3 is real. अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो स्टूडेंट को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि ये दिस क्वेश्चन इज वेरी लेंथी, क्योंकि इसमें एक एक्सपेंशन है, एक टर्म है केवल, और उसको हमें क्या प्रूफ करना है, रियल. कि √7 प्लस I√3 अपॉन √7 माइनस I√3. अगर हम एक तरह से देखें तो इसका कॉन्जुगेट, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट यहाँ डिनोमिनेटर है, और यू कैन से कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर. ठीक यहाँ पर भी वही है, √7 माइनस I√3 अपॉन √7 प्लस I√3, और ये हमें सब मिला करके प्रूफ करना है क्या, इट इज अ रियल नंबर. मीन्स जो नंबर हमें आएगी वो फ्री फ्रॉम आई होना चाहिए, उसमें स्मॉल आई नहीं होना चाहिए. Now see proof of this question. For the proof, since √7 plus I√3 upon √7 minus I√3 plus √7 minus I√3 upon √7 plus I√3, this is given expansion, given term. Now √7 plus I√3 into √7 plus I√3 cross multiply here, so we get √7 plus I√3 whole square plus this into this √7 minus I√3 whole square upon denominator into denominator. So √7 minus I√3 into √7 plus I√3. तो अब हमें इसे क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग प्रॉपर फार्मूला. इट इज इक्वल टू, अब देखो यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला हियर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड यूजिंग a माइनस बी होल स्क्वायर हियर, तो a square minus 2ab plus b square. In the denominator, a minus b into a plus b, a square into a square minus b square.
So therefore root of 7 plus I root 3 whole square is, this is square of root 7 whole square is 7 plus 2 root 7 into root 3i, that is 2ab term, plus I root 3 whole square, that is 3i square, क्योंकि root 3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, 3i square, plus next bracket square of root 7 is 7 minus 2 root 7 into root 3i plus I root 3 whole square is 3i square upon a square minus b square, that is 7 minus 3i square. Now simplify first numerator, 7 plus 7 becomes 14, और यहाँ पर देखो प्लस 2 रूट 7 इंटू रूट 3i, हियर इट इज माइनस रूट 2 रूट 7 इंटू रूट 3i, so they will be cancelled, ये प्लस और ये माइनस will be cancelled, so 3i square plus 3i square becomes 6i square upon 7 minus 3i square. तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इट इज 14 एज इट इज 6 into minus 1, that is plus 6 into minus 1 here, upon 7 minus 3 into minus 1, because I square is minus 1. So substituting the value of I square in the numerator and the denominator both, we get 14 plus 6 into minus 1, that is 14 minus 6 becomes 8, and here it is minus into minus plus, so 7 plus 3 becomes 10. So it is 8 upon 10, and simplify 8 upon 10, we get 4 upon 5. So 4 upon 5 which is a real number, which is a real part, क्योंकि हमें इसमें real proof करना है, तो ये which is a real, so therefore given expansion is real. क्या लिखोगे, therefore root 7 plus I root 3 upon root 7 minus I root 3 plus root 7 minus I root 3 upon root 7 plus I root 3 equals 4 upon 5. तो हमें ये एक रियल पार्ट मिल गया, तो विच इज रियल हेंस प्रूव्ड. तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया. इजिली यू हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 22. आफ्टर दैट, आफ्टर 22nd, now 23rd question. If x plus iy whole cube equal to y plus vi, then show that y upon x plus v upon y equal to 4 multiplied by x square minus y square. Y upon x plus v upon y equal to 4 times x square minus y square. If x plus iy whole cube equal to y plus vi, then show that. Now start proof. Since x plus iy whole cube equals y plus vi, it is given. So first we expand the left hand side. What is the expansion of left hand side? Using a plus b whole cube formula. A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. क्योंकि हमें जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ना कि शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि इसके 2 फार्मूले हैं कि एक्स क्यूब, जैसे हमने अभी मान लो कि ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया, तो क्या लिखोगे, ए प्लस बी प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब. तो वो फॉर्म में न लिख करके हमें पूरा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है. जैसा यहाँ देख सकते हो, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई आई प्लस 3x इंटू वाई स्क्वायर आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू वाई प्लस वी आई. तो ये a प्लस बी होल क्यूब के फार्मूले से हमने एक्सपेंड कर दिया. मिल गया हमें कि एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इंटू आई प्लस 3x वाई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब इंटू वाई क्यूब इक्वल्स वाई प्लस वी आई. नाउ I square is minus 1 and I cube is minus I. So substituting these two values in the next step. So therefore x cube as it is plus 3x square y into I as it is. Here I square is minus 1, this value I square is minus 1. So this will be plus into minus, that is minus 3xy square, and here I cube is minus I, that is y cube into minus I becomes minus y cube I equal to y plus vi. Now
I'll repeat once again. X cube plus 3x square yi minus 3x y square minus y cube I into y plus vi. After that, what will you do? What should you do after this step? Now, collecting real and imaginary parts, because value of I square and value of I cube substituted. So x cube minus 3xy square is the real in the left hand side, plus 3x square y into I minus y cube into I is the imaginary part in the left hand side, equal to y plus vi. After that, comparing real and imaginary parts on both sides. Therefore, x cube minus 3x square y square, x cube minus 3xy square, here this is the real in the left hand side and y is the real in the right hand side. So x cube minus 3xy square equal to y, and imaginary part 3x square into y minus y cube equal to v. तो यहाँ पर I get cancelled. So after comparing real and imaginary parts, we get two equations, x cube minus 3xy square equal to y and 3x square y minus y cube equal to v. Now we see that x common in the left hand side in this part, means first equation को अगर हम देखें, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को देखें और यू कैन से रियल पार्ट में x कॉमन है कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड में, टेकिंग x कॉमन. तो देयरफॉर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू y. यहाँ से देखो x कॉमन इन दिस टू, टेकिंग x कॉमन मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू y. देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू y अपॉन x. अब इस सेकंड पार्ट में देखो y कॉमन, यहाँ पर y कॉमन है, तो वी गेट 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स v. 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू v. देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स v अपॉन वाई. अब देखो यहाँ पर हम y अपॉन एक्स और v अपॉन वाई क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ पर टू प्रूव लाना है पार्ट, वहाँ पर हमें y अपॉन एक्स एंड v अपॉन वाई प्रूव करके लाना है. तो ये रीज़न है कि हम लोग यहाँ पर पहले से ही इसको सेटअप कर लेते हैं, कि इसको जितना सेटअप कर लोगे उतना ही इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो. तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन एक्स मिल गया. क्यों इसको लिया, क्योंकि y अपॉन एक्स में चाहिए कहाँ पर, टू प्रूफ पार्ट में, और यहाँ पर हमने v अपॉन वाई, ये y इस साइड था लेफ्ट में, इसको हमने राइट हैंड साइड में ले लिया, तो इट इज डिवाइडेड. तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू v अपॉन वाई, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. So this is first equation, this is second equation. So adding equation 1 and 2, we get y अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई. इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो y अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, सबसे पहले राइट हैंड साइड को यहाँ पर लिख लिया, दोनों का राइट हैंड साइड ऐड कर लिया, y अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, और रिमेनिंग पार्ट को लेफ्ट राइट हैंड साइड में ले लेते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर हियर प्लस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हियर. Therefore, y upon x plus v upon y equals x square minus 3y square plus 3x square minus y square. ये इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये हमने ऐड कर लिया, ठीक है. आफ्टर एडिंग व्हाट वी गेट हियर, therefore y upon x plus v upon y equal to x square plus 3x square is 4x square, and minus 3y square minus y square is minus 4y square. So 4x square minus 4y square, what is common in these two terms? 4 is common. So therefore y upon x plus v upon y equal to 4 multiplied by x square minus y square. Hence proved. तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 23rd completed. Y upon x plus v upon y equal to 4
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो अब ये जाकर के क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, समटाइम्स जब ये ऑप्शंस में आता है तो कभी कभी इसी क्वेश्चन को यहाँ पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके पूछा जाता है कि वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स, ध्यान देना यहाँ पर, वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स इक्वल टू 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स जो इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन है वो एक्स वाई यहाँ पर रखते हैं। समटाइम्स किसी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि 4xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा भी पूछ सकते हैं या और भी कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो यू कैन ट्रांसफर इजिली, यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट, सो नो प्रॉब्लम इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टर्म्स। क्योंकि जब कोई भी एक स्टूडेंट अगर मैथमेटिक्स के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड करने में कंफ्यूज होगा तो फिर उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और राइट टू लेफ्ट आर सम पार्ट फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट transformation are possible and you can do it easily, then you will be success। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। ये मैंने थोड़ा सा बता दिया कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किस टाइप के चेंजेस करके आजकल ऑप्शन पूछे जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं, जैसा देखो वाई स्क्वायर प्लस वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, इसमें से एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई टू पार्ट्स यहाँ पर बनते हैं। देखो इफ यू फैक्टराइज इट एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई फैक्टराइज हो जाएगा। तो समटाइम्स एक्स प्लस वाई को यहाँ डिनोमिनेटर बना सकते हैं, एक्स वाई को यहाँ ले सकते हैं, तो दैट ऑप्शन विल बी प्रेजेंट। तो इस तरह से हम किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें रेडी होना चाहिए, हम तैयार रहेंगे तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन मीन्स कंपटीशन, और जब ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस में आता है तो एज इट इज आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। ओके, नाउ सी वन मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चन हियर, एक्स्ट्रा क्वेश्चन टू प्रूव √3/7 प्लस i/7 होल क्यूब इज नॉट रियल। देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए वहां पर हमें प्रूव दैट क्या दिया रहता था, टू प्रूव दैट इट इज अ रियल। तो अब हम लोग कुछ एक सम कम से कम ऐसा कर लें जिसमें हमें रियल प्रूफ नहीं करना है। तो अब यहाँ पर क्या दिया है, इज नॉट रियल। तो इज नॉट रियल के लिए हमें प्रोसेस तो वही फॉलो करनी है, लेकिन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और कैसे प्रूव करना है। टू प्रूव √3/7 plus i/7 whole cube is not real. For the proof, since √3/7 plus i/7 whole cube can be written as, पहला तो इसका फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो हम सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। देखो √3/7 होल क्यूब प्लस 3√3/7 स्क्वायर इंटू i/7 मीन्स 3a² b प्लस 3 एज इट इज a मीन्स √3/7 b square that is i/7 whole square plus b cube means i/7 whole cube. See once again, this is a cube, so this is equal to √3/7 whole cube plus 3 into √3/7 whole square into i/7 plus 3 into √3/7 into i/7 whole square plus i/7 whole cube. It is equal to 3√3 प्लस 3 इंटू 3i, 3√3 और यहाँ देखो √3 होल स्क्वायर दैट इज 3 और ये एक i यहाँ पर है, तो 3 इंटू 3i अपॉन 7 स्क्वायर इंटू 7। तो डिनोमिनेटर में हम देखते हैं कि 7 क्यूब, यहाँ पर भी देखो 7 स्क्वायर इंटू 7, क्योंकि होल स्क्वायर है यहाँ पर तो 7 स्क्वायर हो जाएगा इंटू 7, और यहाँ पर 7 इंटू 7 स्क्वायर मीन 7 क्यूब, यहाँ भी 7 क्यूब, यहाँ भी 7 क्यूब और लास्ट में भी 7 क्यूब। तो डिनोमिनेटर में 7 क्यूब हम कॉमन करके इसको 343, 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ पर लिख देते हैं 7 का क्यूब या 343।
और न्यूमरेटर में 3√3 प्लस 3 इंटू 3i प्लस 3√3i स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखो 3√3i स्क्वायर हियर प्लस आई क्यूब फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब इसके बाद हमें यहाँ क्या करना चाहिए देखते हैं। तो i यहाँ पर सिंगल पावर है, नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू, but I square is -1, I cube is -i, तो substituting these values, तो it is equal to, देखो 343 डिनोमिनेटर में, एंटायर डिनोमिनेटर इसका सभी का एक ही कॉमन है, तो 1/343 आउट कर लेते हैं। इन द ब्रैकेट 3√3 एज इट इज प्लस 9i, इनको मल्टीप्लाई किया 9i, और यहाँ देखो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3√3, और आई क्यूब इज -i हियर, तो दिस इज इक्वल टू 1/343 इंटू 3√3 प्लस 9i माइनस 3√3 माइनस i। नाउ सिंप्लीफाई इट, देखो प्लस 3√3 एंड माइनस 3√3 गेट कैंसल्ड, 9i माइनस i becomes 8i into 1/343. Now it can be written as 8/343 into i। अब देखो, तो therefore √3/7 प्लस i/7 होल क्यूब इक्वल टू 8/343 इंटू आई। अब ये 8/343 ये तो इसका रियल पार्ट हो गया, लेकिन इसमें ये क्या है i, तो i मीन्स क्या है √-1, तो 8/343 इंटू आई होल क्वांटिटी इज नॉट रियल। अब ये कौन सा पार्ट हो गया इमेजनरी, तो 8/343 i इज नॉट अ रियल, इज नॉट रियल, यहाँ पर लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। और इसके एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर देख सकते हो एज i इक्वल टू √-1, जैसे अगर हम i की वैल्यू यहाँ √-1 दे दें तो 8/343 इंटू √-1, और जब √-1 किसी नंबर के साथ आ गया तो दैट नंबर विल बी इमेजनरी नॉट अ रियल। तो 8/343, अब देखो i इक्वल टू √-1, 8/343 इंटू -1 इज एन इमेजनरी नंबर, सो इट इज नॉट अ रियल नंबर। ये एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाउ दिस नंबर विल बी इमेजनरी और नॉट रियल। ये पार्ट 8/343 इंटू आई इज नॉट रियल, इजिली यू कैन सी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर एटलीस्ट एक्स्ट्रा हो गया कि जो नॉट रियल प्रूफ करना था, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किए थे ये एक्सरसाइज में, वो सभी क्वेश्चन में जहाँ पर प्रूफ दैट का आया तो वहाँ पर रियल आया था, और नॉट रियल ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दिस प्रूफ, एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी स्टूडेंट को ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए, और ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस मिलते हैं वो सभी क्वेश्चंस को हमारे सभी डियर स्टूडेंट मिल करके सॉल्व करेंगे। एंड वन मोर थिंग, इफ एनी डाउट तो यू कैन आस्क योर डिफिकल्टीज इन द कमेंट सेक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट को आज का सभी सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।